Hello everyone, in this lecture we will start a new chapter from class 12th chemistry, that is organic compounds containing nitrogen. So this is one of the most important compounds in organic chemistry. As you know, there are so many compounds, so many organic compounds containing nitrogen like nitriles, isonitriles, amines, amides, diazonium salts, etc. But in this chapter we will be discussing mainly two types of compounds, one amines and then diazonium salts. So let's start with amines. So the first question comes, what is the general formula of amines? What are amines? Amines are generally alkyl or aryl derivatives of ammonia. You know that the formula of ammonia is NH3. Now if you replace hydrogen from NH3, one or two or all three hydrogen, so it will become RNH2 and the formula RNH2. Such compounds are called amines. So in amines, hydrogen is replaced from ammonia by alkyl group. तो अगर आप alkyl group से हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे अमोनिया से और उसकी जगह पर आप alkyl group प्लेस कर देते हो तो आपको मिल जाता है अमाइन. अगर आप अराइल ग्रुप भी प्लेस करते हो तो आपको अराइल अमाइन मिलेगा. तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो अल्काइल या अराइल ग्रुप से, देन इट विल बी कॉल्ड अमाइन. नाउ लेट्स सी व्हाट is the classification, in how many ways we can classify amines. The first thing, that is on the basis of number of alkyl groups attached to nitrogen. Nitrogen atom पे कितने alkyl groups attached होते हैं. So you can classify as primary, secondary and tertiary amine. So primary, that is 1 degree, secondary 2 degree and tertiary 3 degree amines. Means primary, if one alkyl group is present in compound, or you can say if the alkyl group, only one hydrogen is replaced by alkyl group, then it will be called primary amine. So it can be represented as RNH2. Similarly, if there are two alkyl groups replacing hydrogen atoms from ammonia, then it may be like RN R dash H. And if there are three alkyl group like this, RN R dash R double dash, then it will be called tertiary amine. So there are three types of amines. For example, CH3, CH2, NH2. This is primary amine. If you say CH3, CH2, N, CH3, H, then it is secondary amine. And if you say like CH3, CH2, N, CH3, CH3, then it is tertiary amine. तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हम कैसे डिसाइड करते हैं. नाइट्रोजन पे कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं. नाउ इफ देयर इज वन मोर अल्काइल ग्रुप, आपको पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अगर एक और अल्काइल ग्रुप आ गया, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, N, यहाँ पे एक और ग्रुप आ गया CH3, इधर भी CH3, CH3, देन बिकॉज पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर और यहाँ पे मान लेते Cl आ गया, देन इट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी सॉल्ट. ये अब अमाइन नहीं रह गया, दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी ammonium salt. It is called quaternary ammonium salt. तो इनको हम कहते हैं quaternary ammonium salt. So I hope you have understood the classification of amines on the basis of the number of alkyl groups attached to nitrogen. कितने alkyl groups present होते हैं, कितने alkyl groups attached होते हैं nitrogen पे. तो this is the classification based on the number of alkyl groups attached to nitrogen. Now we will classify the amines on the basis of types of groups attached to nitrogen. So there may be two types of groups. One is alkyl groups. So these are called alkyl amines and other are called aryl amines.
So what are alkyl amines? If alkyl groups are attached to nitrogen, then these amines are called alkyl amines, and if aryl groups are also attached to nitrogen, then these are called aryl amines. So for example, CH3, CH2, NH2, दिस इज एन एल्काइल अमाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो मैंने अभी बताया अगर एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो एल्काइल अमाइन हो जाएंगे, और अगर एराइल ग्रुप्स भी अटैच्ड होंगे तो उनको एराइल अमाइंस कहेंगे। सो दिस इज योर एल्काइल अमाइन। सो दिस इज इथेन अमाइन। नाउ इफ दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज अटैच्ड, सो इट इज कॉल्ड एनिलीन। सो व्हाट इज इट्स नेम? एनिलीन। नाउ यहाँ पे एल्काइल और एराइल अमाइन, इनको हम एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन से बोलते हैं। तो जनरली एरोमेटिक के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, तो ध्यान रखिए। एलिफेटिक, एलिफेटिक तब होता है, एलिफेटिक तो ये जो कैटेगरीज होती है एल्काइल अमाइन जो होते हैं वो एलिफेटिक में ही आते हैं, और दूसरा एरोमेटिक, एरोमेटिक अमाइंस किस में आते हैं? एरोमेटिक अराइल अमाइंस होते हैं। और एक और कंपाउंड्स जो होते हैं अराइल अमाइंस या फिर एल्काइल अराइल अमाइंस। What are alkyl aryl amines? Alkyl aryl amines, तो aromatic amines can be classified further in two types. If there are only aryl groups, मतलब केवल अगर बेंजीन रिंग आपके पास है तो उसको हम कहेंगे aryl amines, बट अगर वहां पे alkyl groups भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल this compound, so NHCH3, so it is your alkyl aryl अमाइन। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, एराइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इट विल बी कॉल्ड अल्काइल एराइल अमाइंस। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि इन कंपाउंड्स को हम अल्काइल एराइल अमाइंस बोलते हैं, इनको हम एराइल अमाइंस बोलते हैं, और इनको अल्काइल अमाइंस बोलते हैं, या सिंपली आप इनको जस्ट एलिफेटिक अमाइंस भी कह सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइंस। नाउ लेट्स सी द नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अगेन दो तरीके का नॉमेनक्लेचर होता है, कौन कौन सा? द फर्स्ट वन इज कॉमन सिस्टम एंड द सेकंड वन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आपको पता है कॉमन नेम जो होते हैं वो पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है कोई, वहां पे आप किसी भी तरीके से आप नाम रख सकते हो, कहीं कहीं पे आपको एक ट्रेंड देखने को मिल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम अमाइंस की बात करें तो अमाइंस को हम अलग अलग तरीके से रख सकते हैं नाम, जैसे CH3NH2। नाउ हम एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों अमाइंस का नोमेनक्लेचर देखेंगे, और कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम दोनों की हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट CH3NH2। तो अगर हम एक एलिफेटिक अमाइन की बात करें, सो इट्स कॉमन नेम इज, ग्रुप देखिए आप कौन सा है? CH3। सो एल्काइल और यहाँ पे अमाइन, तो यहाँ पे हम एल्काइल अमाइन के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से? एल्काइल अमाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन। सो दिस इज द कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। व्हाट इज द IUPAC नेम? IUPAC नेम इज मीथेन अमाइन। तो ध्यान रखिए IUPAC नेम इज एल्केन अमाइन एंड कॉमन नेम इज एल्काइल अमाइन। सो व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? दैट इज मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। तो ध्यान रखिए दिस इज द IUPAC नेम, दिस इज द कॉमन नेम। और एक तरीके से हम कॉमन नेम रख सकते हैं, दैट इज अमीनो एल्केन। जैसे इसका नाम हम रख सकते हैं अमीनो मीथेन। सो अमीनो एल्केन इज ऑल्सो कॉमन नेम। उसी तरीके से जैसे हम इसका नाम रखेंगे CH3 CH2 NH2। सो व्हाट विल बी इट्स कॉमन नेम? इट्स कॉमन नेम इज इथाइल अमाइन और अमीनो इथेन। एंड व्हाट विल बी IUPAC नेम? दैट विल बी इथेन अमाइन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एल्केन अमाइन आ गया है, एल्केन अमाइन इज IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में हमेशा एल्केन अमाइन आता है। नाउ व्हाट फॉर सेकेंडरी एंड टर्जरी? तो सेकेंडरी और टर्जरी के केस में क्या होता है? लेट्स सी, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NHCH3। सो व्हाट विल बी इट्स नेम? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखनी है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन टू विच N इज अटैच्ड। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई आपकी। सो दिस विल बी पेरेंट चेन एंड दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं N मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, N मिथाइल इथेन अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? N मिथाइल
इथेन अमाइन। तो हम अगर कोई भी नाइट्रोजन से अटैच्ड कोई भी एल्काइल ग्रुप है, इट इज एन एल्काइल देन एल्केन अमाइन। इफ देयर इज टर्शरी कंपाउंड्स, so for example CH3 CH2N CH3 CH2 CH2 CH3. Now what is the longest chain? This one is the longest chain, so this is the parent chain and these two are substituent groups. So what will be the name? This is N-ethyl, N-methyl. So what is its name? N-ethyl, N-methyl, and 1, 2, 3, that is propanamine. N-ethyl, N-methyl, propanamine. Now what will be their common names? So common names ऐसे ही हो जाएंगे इसके, जैसे अगर इसकी हम बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH3N CH3 CH3, so it is N डाइमिथाइल मीथेनामाइन। अगर हम बात करें इसके IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? N डाइमिथाइल, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, तो N डाइमिथाइल मीथेनामाइन। एंड व्हाट विल बी इट्स कॉमन नेम? कॉमन नेम इज ट्राइमिथाइल अमाइन। तो क्या नाम हो जाएगा कॉमन? ट्राइमिथाइल अमाइन। तो जो भी ग्रुप्स हैं इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी हैं उनका आप नाम रखते जाओगे और फिर उसके लास्ट में अमाइन रख दोगे अगर आप कॉमन नेम में क्लासिफिकेशन कर रहे हो। और अगर IUPAC नेम में कर रहे हो तो IUPAC नेम में आपको पेरेंट चेन होगी और फिर उसके अलावा जो भी आपके पास ग्रुप बचेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का आप नोमेनक्लेचर कैसे करते हो। तो जनरली मैंने अभी आपको बताया दिस इज वन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, और इसका एरोमेटिक कंपाउंड आपको वहां पे दिख रहा है और इसका नाम आपको पता है, इट्स नेम इज एनिलीन। बट एनिलीन इसका IUPAC नेम नहीं है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज द ग्रुप? दैट इज कॉल्ड बेंजीनमाइन। व्हाट इज IUPAC नेम? बेंजीनमाइन। तो इसका IUPAC नेम होगा बेंजीनमाइन। नाउ सिमिलरली इफ देयर इज एल्काइल ग्रुप देन NCH3NH, तो अगर ऐसा होगा NHCH3, नाउ इट इज एल्काइल एराइल अमाइन। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट विल बी N, बाकी सेम नाम होगा N। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, सो इट्स नेम विल बी N मिथाइल बेंजीनमाइन। अगर यहाँ पे एक और एल्काइल ग्रुप हो जाता तो इट्स नेम वुड बी, अगर मान लेते हैं एक और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है नाइट्रोजन पे, इट्स नेम वुड बी N डाइमिथाइल बेंजीनमाइन। तो आपको इसका ध्यान रखना है, इसका नाम क्या हो जाता है? N डाइमिथाइल बेंजीनमाइन। अगर एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता तो नाम इसका बहुत इजी है, नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। नाउ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ कंपाउंड, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, CH3 CH2 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 CH3। Now instead of this we have NH2। तो दिस इज नॉट अ सेकेंडरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन नहीं है, यहाँ पे एक प्राइमरी अमाइन है क्योंकि ये एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन से। नाउ व्हाट विल बी इट्स नेम? व्हाट विल बी इट्स नेम? सो व्हाट डू यू हैव टू सी? द पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे कितने हैं? क्या है? एटम्स हैं कार्बन के, सो इट विल बी पेंटेन। और अमाइन ग्रुप देखिए NH2 ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप किस पे अटैच्ड है? दैट इज थर्ड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम पे अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 अमाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन 3 अमाइन। सो इट्स नेम विल बी पेंटेन 3 अमाइन। तो थर्ड कार्बन एटम पे है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 अमाइन। सेकंड पे होता है तो पेंटेन 2 अमाइन, फर्स्ट पे होता है तो पेंटेन 1 अमाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस क्लियरली कि क्या क्या डिफरेंस इन कंपाउंड्स में है और कैसे आप इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमरिज्म इन अमाइंस। सो लेट्स टॉक अबाउट आइसोमरिज्म। तो यहां पे आप अलग अलग तरीके का आइसोमरिज्म देख सकते हो अमाइंस में। द फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दैट यू कैन सी इज चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमरिज्म आप हर जगह देख सकते हो। द फर्स्ट इज
chain isomerism. So chain isomerism is due to the different arrangements of alkyl groups or carbon chain. So for example, CH3, CH2, 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 NH2. So what is its name? Its name is butane 1-amine. This is butane 1-amine. Now if we talk about CH3, CH2, CH, or here we have CH3, or you can also have CH3 here. Suppose CH3, CH and CH2, then NH2. So यहाँ पे देखिए कार्बन चेन जो है वो चेंज हो गई. तो what will be its name? You can see 1, 2, 3. So it will be 2-methyl प्रोपेनमाइन. तो ये क्या है? कार्बन चेन के अरेंजमेंट की वजह से, अलग अलग अरेंजमेंट है कार्बन चेन के, और इसकी वजह से आपको ये आइसोमरिज्म देखने को मिला है. सो दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म. द नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमरिज्म. पोजीशन आइसोमरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. एंड व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप हियर? दैट इज अमाइन. तो अमाइन जो होगा उसके डिफरेंट पोजीशंस की वजह से आपको पोजीशन आइसोमरिज्म देखने को मिल सकता है. तो सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमरिज्म. So let's see some examples of position isomerism. For example, we have CH3, CH2, CH2, and H2. So what is it? It is propane 1-amine. Now if we have CH3, CH, and H2, CH3. So it is propane 2-amine. तो यहाँ पे क्या है? जो NH2 की पोजीशंस हैं वो अलग अलग हो गई. एक बार फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच्ड है, दूसरी बार सेकंड कार्बन एटम पे अटैच्ड है. सो इट इज प्रोपेन 1-amine एंड प्रोपेन 2-amine. सो सच आइसोमरिज्म इज नोन एज पोजीशन आइसोमर्स, और इसको इन आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे. तो ये एग्जांपल हो गए किसके? पोजीशन आइसोमरिज्म के. द थर्ड दैट यू कैन ऑब्जर्व इज मेटामरिज्म. सो लेट्स सी व्हाट इज मेटामरिज्म. तो मेटामरिज्म के बारे में आपको पता है. व्हाट इज मेटामरिज्म? इन मेटामरिज्म देयर इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देयर इज डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो अगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है? कार्बन एटम्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है CH3, CH2, CH2, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास NHCH3. तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज इट्स नेम? इट इज मिथाइल, or you can say N-methyl 1, 2, 3 प्रोपेनअमाइन, 1-methyl प्रोपेनअमाइन. बट यहाँ पे देखो एक तरफ क्या है? 3 कार्बन एटम है और दूसरी तरफ एक ही कार्बन एटम है. बट अगर मैं इस CH2 को इधर लिख दूं, सो व्हाट विल बी इट्स नेम? CH3, CH2, NH, देन CH2, CH3. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N-ethyl इथेनमाइन. तो अगर N-ethyl इथेनमाइन, तो अगर इधर साइड जो है किसके? जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं, ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा आइसोमर्स में सेम रहता है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन इधर साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी डिफरेंट. तो यहाँ पे भी वही है. तो इनको हम क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं. एंड सच आइसोमरिज्म इज नोन एज मेटामरिज्म. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है इसमें, कौन कौन से टाइप के आइसोमर्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं. तो दिस इज आइसोमरिज्म इन अमाइंस. द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस. तो स्ट्रक्चर जो होता है अमाइंस का, इन अमाइंस यू नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1. And these three, 1, 2, 3 and 2s orbital, these 4 orbitals undergo sp3 hybridization. तो कौन सा इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है? दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास? 4 ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3 and 4, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है 5. तो इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से जो एक ऑर्बिटल होगी वो तो कंप्लीटली फिल्ड होगी, मतलब उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो उसी तरीके से नाइट्रोजन में भी होता है. देयर विल बी 1 lone pair of electrons. So there is 1
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, और बाकी जो 3 ग्रुप्स होते हैं 1 2 3। तो अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बात करूं, तो प्राइमरी अमाइन में क्या होते हैं, बाकी के जो 3 ग्रुप बच गए, तो 1 नाइट्रोजन एटम, देन वी हैव 1 एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपको पता है ये पिरामिडल शेप होगा, और पिरामिडल शेप में क्या होगा, अगर एक हाइड्रोजन एटम को मान लेते हैं, हाइड्रोजन एटम को मैं एक क्या ले लेता हूं, इसी प्लेन पे ले लेता हूं, दिस आर ऑन सेम प्लेन, तो मान लेते हैं ये सेम प्लेन पे है, तो एक हाइड्रोजन एटम क्या होगा, 1 हाइड्रोजन एटम इज अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन जो होता है मतलब प्लेन से बाहर इस तरफ, तो अबव द प्लेन उसको मैं कैसे शो करता हूं, सॉलिड वेज से। तो यहां पे मान लेते हैं ये एल्काइल ग्रुप है, एंड अदर वन इज बिलो द प्लेन, तो दूसरा जो होता है वो बिलो द प्लेन होता है। तो इस हाइड्रोजन को मैं सेम प्लेन पे यहाँ पे शो करता हूँ, एंड द अदर वन इज बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन वाले को मैं कैसे शो करता हूँ, इसको मैं शो करता हूँ डैश्ड वेज से। हाउ, बाय डैश्ड वेज। तो इस तरीके से एक एल्काइल ग्रुप आपका हो गया। तो ये पीछे की तरफ होता है और एक एल्काइल ग्रुप आगे की तरफ होता है। सो दिस इज फॉर प्राइमरी अमाइन। अगर यहीं पे सेकेंडरी अमाइन होगा, इफ इट इज सेकेंडरी अमाइन, सो फॉर सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे एक और एल्काइल ग्रुप को आप रिप्लेस कर दोगे, किससे, जो हाइड्रोजन है उसको एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे। और अगर ये टर्सरी अमाइन होता है तो टर्सरी अमाइन में तीनों हाइड्रोजन को आप एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे, दिस इज आर डैश, आर डबल डैश। तो इस तरीके से आपका ये टर्सरी अमाइन हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अमाइंस का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। Next topic is preparation of amines. So there are various methods of preparation of amines. So let's discuss some methods of preparation. The first is from alkyl halides. So how do we prepare amines from alkyl halides? So this reaction, this preparation of amines from alkyl halides, it is known as Hofmann's ammonolysis method. तो Hofmann's ammonolysis method में हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, एक हेलो एल्केन को या एक आप कह सकते हो एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं विद अमोनिया, and it is heated at 373 Kelvin. So up to 373 Kelvin it is heated, and then it will give HX क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, and RNH2 आपको मिल जाएगा. So this is primary amine. This is primary amine. Then on further reaction, अगर हमारे पास क्या है, जो RX, if it is in excess, if RX is in excess, then it will give again RX will further react with RNH2. तो एक H और X रिप्लेस हो जाएगा और it will give R that is secondary amine. उसके बाद आपको मिलेगा secondary amine. And on further reaction एक H अभी भी है तो एक H को और रिप्लेस करेगा, so it will form tertiary amine. So 3 degree amine. और इतने में ही नहीं, आपको पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, so it will form quaternary salt. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर द अमाइंस विद हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड. सो लेट्स सी सम एग्जांपल. लाइक वी हैव CH3X और यू कैन से CH3Br plus NH3. So at 373 Kelvin it will replace HBr and it will form CH3 NH2. On further reaction it will form it will replace HBr with CH3Br and it will form CH3NH, and here we have CH3. On further reaction with CH3Br it will form CH3, here we have one more CH3. So this is tertiary amine. So you can see here we have methylamine, or you can say methenamine. Here we have N-methyl methenamine, N-dimethyl methenamine. Now this is tertiary, this is secondary, this is primary. And on further reaction with CH3Br it will form quaternary salt. So it will be like this: CH3N, CH3 and CH3 here, and then we also have Br. तो ये अब इसने क्या फॉर्म कर लिया, एक क्वाटरनरी सॉल्ट फॉर्म कर लिया. सो इट विल बी टेट्रा एल्काइल. टेट्रा एल्काइल मीन्स यहाँ पे क्या है, टेट्रा मिथाइल. सो इट विल बी
टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इस कंपाउंड का नाम है टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस मेथड? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट a mixture of various compounds is formed in this process. You can see, because it will give primary, secondary, tertiary compounds as well as quaternary salt. तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कंपाउंड भी फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, और उसके साथ साथ एक क्वाटरनरी सॉल्ट भी फॉर्म हो रहा है इनका। तो इस मिक्सचर को आपको सेपरेट करना पड़ेगा फिर। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक डिसएडवांटेज हो जाता है इस मेथड का। द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर एराइल अमाइंस बाय दिस मेथड। एराइल अमाइंस को प्रिपेयर करना मुश्किल होता है इस मेथड से, क्योंकि एराइल अमाइंस आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एराइल अमाइंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है ज्यादा, तो एराइल अमाइंस नहीं आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है हेलो एरिन्स जो होते हैं हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? हेलो एल्केन से। अगर आप एराइल अमाइंस प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आपको हेलो एरिन्स यूज करने पड़ेंगे, और हेलो एरिन्स में क्या होते हैं? वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द disadvantages of this method. The next is by reduction of nitro compounds. Nitro compounds को आप कैसे reduce करके किस में convert कर सकते हो? amines में convert कर सकते हो. So let's see some example like RnO2. This is one of nitro compound. तो उसको क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन के लिए आप बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, LiAlH4, और हाइड्रोजन और निकल यूज कर सकते हो। अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कर रहे हो तो आप निकल यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है निकल से रिडक्शन हो जाता है। देन यू कैन यूज SnHCl और FeHCl। तो इनमें से कोई सा भी यूज कीजिए आप, डजंट मैटर। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एक अमाइन, साथ में आपको मिलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस मेथड से आप किसी भी तरीके के अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हो, अल्काइल अमाइंस एज वेल एज एराइल अमाइंस। लेट्स एग्जांपल्स। तो आपके पास एक एग्जांपल है CH3CH2NO2 plus 6H. So what is it going to form with SN? तो हम एक चीज यूज करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे H2 यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगा 3H2 विद निकल। यू कैन ऑल्सो यूज LiAlH4, इनमें से कोई सा भी यूज कीजिए। Ni प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो निकल की जगह पे। तो व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म CH3CH2NH2 plus 2H2. Now here instead of this you can also use benzene ring. तो you can also use nitrobenzene. तो nitrobenzene प्लस 3H2, तो यहाँ पे आप चाहो तो क्या यूज कीजिए? LiAlH4। वैसे आप चाहो ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमको, ये अंडरस्टूड होता है कि इसका रिडक्शन है। तो ये जस्ट मैं आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत हमको लिखने की नहीं होती है। तो इट विल फॉर्म NH2 प्लस 2H2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको मिल गया एनिलीन। तो इस तरीके से आप चाहे आप एराइल अमाइन प्रिपेयर करना चाहो, एल्काइल अमाइन प्रिपेयर करना चाहो, दोनों तरीके के अमाइंस आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। तो साइनाइड्स का रिडक्शन आप कैसे करोगे? तो साइनाइड्स के साथ साथ आप आइसोसाइनाइड्स का रिडक्शन भी कर सकते हो, और इस मेथड में भी आपको दोनों तरीके के अमाइंस मिल जाएंगे, एराइल एज वेल एज एल्काइल अमाइंस। सो लेट्स सी हाउ। तो यहाँ पे देखिए पहले साइनाइड्स होते क्या है? तो साइनाइड्स को आप जनरली जो इसका IUPAC नेम जब लिखते हो तो उनको आप नाइट्राइल्स भी कहते हैं। तो साइनाइड्स दैट इज साइनो ग्रुप C+N। तो R C+N। तो इसका जब आप क्या करते हो? रिडक्शन करते हो। तो रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? सेम चीज बिल्कुल वैसे ही हम रिडक्शन करेंगे। तो या तो आप यहाँ पे भी क्या यूज कीजिए? LiAlH4 यूज कीजिए, या फिर हम एक और चीज यूज करते हैं यहाँ पे NaC2H5OH, दैट इज एल्कोहल, सोडियम एल्कोहल, या फिर सेम वही H2 और H2 के साथ Ni या प्लेटिनम। तो इन तीनों में से कोई सी भी चीज आप यूज कीजिए, सेम रिएक्शन आपको मिलेगी। तो यू विल गेट RCH2NH2, राइट। तो इस तरीके से आप रिडक्शन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप
NaC2H5OH यूज करते हो रिडक्शन के लिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड देन मेंडियस रिडक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? मेंडियस रिडक्शन। ध्यान रखिए, अगर आप इसको यूज करते हो तो इसको हम क्या कहते हैं? मेंडियस रिडक्शन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हम रिड्यूस करते हैं। उसी तरीके से आप चाहो तो आइसोनाइट्राइल्स यूज कर सकते हो, नाइट्राइल्स की जगह पे आप आइसोनाइट्राइल्स। अभी आइसोनाइट्राइल्स क्या होता है? आइसोनाइट्राइल्स होते हैं इस तरीके से RNC। तो यहां पे भी हमको वही करना होता है, दैट इज 4H। अब यहां पे आपको मिलेंगे सेकेंडरी अमाइंस, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप मिलेगा, तो सब कुछ सेम रहेगा, LiAlH4, और आप यूज कर सकते हो H2 सोडियम हाइड्रोजन और निकल, और इधर Na और C2H5, और आपको मिलेगा क्या यहाँ पे? आपको सेम यहाँ पे मिलेगा, देखिए आपको R, यहाँ पे NHCH3। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे हमेशा मिलेगा आपको सेकेंडरी अमाइन। तो अगर आप किसका साइनाइड्स या फिर आइसोसाइनाइड्स, तो आइसोसाइनाइड्स का रिडक्शन करते हो तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप एराइल अमाइंस या फिर एल्काइल अमाइंस कोई सा भी फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N+4H। सो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट, तो कोई सा भी यूज कर लीजिए आप, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ LiAlH4, तो क्या मिल जाएगा हमको? CH3CH2NH2 प्राइमरी अमाइन। और अगर यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अमाइन, मान लेते हैं मैं एराइल अमाइन यूज कर रहा हूँ और N ये है +4H, तो आप यूज कीजिए LiAlH4, तो आपको क्या मिल जाएगा? NHCH3. So this is your secondary amine. Next is preparation from alcohols. So this method is used in industries. So इसमें हम क्या करते हैं? Alcohols is heated with ammonia at 633 Kelvin in the presence of aluminium oxide. तो हम यहाँ पे aluminium oxide use करते हैं. What you get is primary amine and water. So for example, CH3OH plus NH2 in the presence of Al2O3 at 633 Kelvin. What will we get? CH3NH2 plus H2O. तो इजीली आप इस मेथड से अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हो इंडस्ट्रीज में। द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम अमाइड्स। तो अमाइड्स से हम दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। वन इज बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। सो रिमेंबर क्या करते हैं हम इस रिएक्शन में? सेम ही है, हॉफमैन डिग्रेडेशन और हॉफमैन ब्रोमोमाइड। सो व्हाट वी यूज फ्रॉम अमाइड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं? अमाइड से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अमाइड किसको कहते हैं। अमाइड इज RC+ONH2। तो इसको हम क्या कहते हैं? अमाइड कहते हैं। तो अमाइड से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ब्रोमीन और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं अमाइड को, और वहां से आपको मिलता है अमाइन K2CO3, KBr और H2O। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3CH2 C+ONH2। तो अब मिल गया आपको। तो अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस यहाँ पे Br2 प्लस 4KOH के साथ रिएक्ट करेंगे इसको, और ये क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म CH3CH2NH2। ध्यान रखिए ये कार्बन आइटम नहीं आएगा। देन ये कार्बन किस में जाएगा? K2CO3 में, प्लस 2KBr प्लस 2H2। तो दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट वन। तो यहाँ पे आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, और आप इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन कह सकते हो। नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन से भी आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल RC+O, यहाँ पे आप देख रहे हो RC+O NH2। तो R की जगह पे हम क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं CH3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप इजीली रिएक्ट कर सकते हो इसको। तो NH2 ये अमाइड है, तो इसका रिडक्शन क्या फॉर्म करेगा? LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका CH3NH2 प्लस H2। तो इस तरीके से आपको
जो अमाइन है वो मिल जाएगा रिडक्शन से भी और हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से भी। द नेक्स्ट लास्ट मेथड इज गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन और यू कैन से गैब्रियल-थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले आपके पास एक कंपाउंड होता है जिसको आप कहते हो थैलामाइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थैलामाइड? यू कैन सी हियर वी हैव बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH। तो इस कंपाउंड का नाम है थैलामाइड। अब इस थैलामाइड से हम प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, NH यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ इसको ट्रीट करेंगे, इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, एक H यहाँ से OH यहाँ से H2O लूज कर देगा और K N के साथ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NK। तो दिस इज कॉल्ड पोटेशियम थैलामाइड। क्या मिला हमको यहाँ से? पोटेशियम थैलामाइड। So we have got potassium thalamide. Now this potassium thalamide is treated with RX, that is हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन के साथ ट्रीट किया हमने इसको। क्या होगा हेलोएल्केन के साथ ट्रीट करके? आपको भी पता है KX सेपरेट हो जाएगा और K की जगह पे आ जाएगा R। एल्काइल आ गया तो व्हाट विल बी इट्स नेम? एल्काइल, क्योंकि N पे अटैच्ड है तो इट विल बी N एल्काइल थैलामाइड। इतना कर लिया। इतना करने के बाद बहुत सिंपल है, वी हैव टू ट्रीट विद इट डाइल्यूट HCl अंडर प्रेशर। डाइल्यूट HCl के साथ इसका क्या करते हैं, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम इसका करते हैं, तो डाइल्यूट HCl के साथ हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं अंडर प्रेशर। तो ये क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा RNH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RNH2 में, एंड इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH। तो दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? दोनों के साथ OH आ जाएगा और H2 जो था H2 किसके साथ चला जाएगा? N के साथ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम, और आपको यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मिलेगा तो कैसे हम प्राइमरी अमाइन फॉर्म कर सकते हैं बाय गैब्रियल-थैलामाइड सिंथेसिस। तो इसको हम कहते हैं, यू कैन सी देयर आर COOH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड थैलिक एसिड। तो अगर ये ऑर्थो पे होते हैं तो इसको हम कहते हैं थैलिक एसिड, और अगर ये पैरा पे होता है COOH ग्रुप तो इसको हम कहते हैं टेरेथैलिक एसिड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गैब्रियल-थैलामाइड सिंथेसिस। तो अगर हम यहाँ पे R की जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल R की जगह पे अगर हम यहाँ पे CH3 ग्रुप यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे बस CH3NH2 हो जाएगा। तो देख लीजिए बाकी सब कुछ एक जैसा है, केवल हमको एल्काइल ग्रुप चेंज करना है। तो एल्काइल ग्रुप चेंज करोगे तो आपको जो कंपाउंड है वो भी अलग अलग मिल जाएंगे, अलग अलग प्राइमरी अमाइंस मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर वेरियस अमाइंस with various methods. So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.